البیان ڈاکٹر سیدہ نفیسہ بیگم صاحبہ حفظہ اللہ تعالی، تعلیم الحدیث، سابق صدر کلیت البنات جامعہ نظامیہ، مفتی یونیورسٹی جامعہ عثمانیہ کا تحریر کردہ مقالہ اصلاح معاشرہ و عرف، جس کی تقدیم مولانا محمد طاہر خان صاحب استاد المعہد الدینی العربی کریں گے۔ کا مقالہ پیش کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال سبحانہ وتعالی یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم و معزز حاضرین و محترم سامعین، میرے اس مقالے کا عنوان تبلیغ اسلام اور اسلامی معاشرے میں عورت کا کردار۔ یہ عنوان نہایت اہم اور وقت طلب ہے، مگر آج کے سیمینار میں وقت مختصر، اس لیے اس کو بہت اختصار کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ یہ سورۃ شورى کی آیت ہے کہ مرد و عورت دونوں انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا حسین تحفہ ہے۔ ہمارے مقالے کا موضوع عورت سے متعلق ہے، اس لیے ہم اسی کی بات کرتے ہیں کہ عورت انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا نہایت خوبصورت تحفہ ہے۔ سے بھی زیادہ گہری سمجھی جاتی تھی، اس کو مرد کے مال میں کوئی حصہ نہیں تھا، شوہر کی زندگی کے بعد اس کو جینے کا کوئی حق نہیں تھا، وہ مشترکہ مال کی طرح تھی اور وہ ہمیشہ محکوم تھی، وہ عزت و تکریم کی کوئی چیز نہیں تھی۔ لفظ عورت ذلت و خاری کا معنی دیتا تھا، اور دور جدید اور آج کی مغربی تہذیب میں بھی عورت پر بڑا ظلم کیا گیا ہے۔ مساوات کے نام سے اس کو بے مروتی اور محبت سے خالی بازار میں لا کھڑا کر دیا گیا ہے، اور اس کی عصمت دری کے واقعات آئے دن بڑھے جا رہے ہیں۔ مغربی تہذیب کے یہ دلدادہ افراد خوب فریبی میں مبتلا ہے، اور یہ بات اہل دنیا پر آیا ہے۔ اس کی تفصیلات میں گئے بغیر ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج سے تقریباً 1000 سال پہلے اسلام کا سورج عالم انسانیت کے افق پر طلوع ہوا تو اس کی روشنی میں دنیا نے اسلام کا یہ اعلان پڑھا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ لڑکا ہو یا لڑکی، اللہ تعالیٰ کا حسین تحفہ ہے۔ اس عالم میں رنگ و بو اور اس کی ساری بہاریں عورت سے ہیں۔ الہامی شاعری مشرق حضرت اقبال نے اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے نظم کیا، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز گرو، شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشت خاک، اس کی کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مخمور۔ اسلام نے بباج دہل اعلان کیا، عورت اپنی زندگی کے ہر دور میں عزت و تکریم کی شخصیت ہے۔ عورت اپنی زندگی میں 3 مراحل اور 3 ادوار سے گزرتی ہے۔ پہلا مرحلہ میں وہ بیٹی ہوتی ہے، دوسرے مرحلے میں بیوی اور تیسرے مرحلے میں ماں ہوتی ہے۔ ہر مرحلے میں اسلام نے اس کو عزت کی بلندیوں پر رکھا۔ پیدا ہوتے ہی اس کو خالق کائنات کا عظیم تحفہ فرمایا، یہب لمن یشاء اناثا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے بارے میں فرمایا، تابو بین اولادکم فی العطیہ، عطیہ دینے میں اولاد یعنی بچہ اور بچی کے درمیان مساوات رکھو، یعنی فرق مت کرو۔ اور جب دوسرا مرحلہ بیوی کا شروع ہوتا ہے، اس کو عظیم الشان عزت و حرمت سے سرفراز کیا، اپنی مرضی کا شوہر انتخاب کرنے کا اس کو حق دیا۔ بخاری شریف میں ہے، لا
तुनकहुल अय्यिमु हत्ता तुस्तअमरा वला तुज़व्वजुल बिक्रू हत्ता तुस्तअज़ना। फरमाया कि कोई बेवा या मुतल्लका औरत का उसके हुक्म के बगैर निकाह नहीं किया जाएगा और किसी भी बाकरा औरत की उसकी इजाज़त के बगैर शादी नहीं की जाएगी। इस्लाम ने औरत की कदर और कीमत को इस कदर अजीम व बुलंद कर दिया कि मर्द हज़रात के नेक होने को अपनी बीवी के साथ उसके सलूक पर मौकूफ़ रखा। तिरमिज़ी शरीफ में है अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुक़न व खियारुकुम लिनिसाइकुम। तुम्हें अच्छे वो हैं जो अपनी औरतों के साथ अच्छे हैं। जब तीसरा मरहला शुरू होता है तो औरत बीवी की माँ बनती है। इस मरहले में इसकी शराफत और इज्जत को इस कदर बुलंद किया गया कि माँ के हक़ को बाप के हक़ पर मुक़द्दम किया गया और नेक माओं के कदमों के नीचे जन्नत को रख दिया। और जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात। और ये हकीकत है कि माँ तक़ावत का मंबा है, वो अता करना और देना जानती है, वो लेना नहीं जानती। और इसी माँ का गोद प्यार का ऐसा गहरा समंदर है जिसका कोई साहिल नहीं। माँ का रिश्ता इंसान के लिए निहायत करीमाना रिश्ता है। वो ईमान व अखलाक का दरिस्तान और इंसानियत का मदरसा है जिसमें प्यार और मोहब्बत की तालीम दी जाती है। बहरहाल इस्लाम ने औरत को उसकी ज़िंदगी का तमाम मराहिल में शराफत व अज़मत के बुलंद मनसब व मर्तबत पर फायद किया। औरत के किरदार की पाकीज़गी, अज़्म व उसूल की बुलंदी और इस्लामी माशरे में बुनियादी किरदार अदा करती है, क्योंकि इस्लामी माशरे ज़िंदगी के पुरसुकून होने का नाम है। और ये हकीकत है कि ज़िंदगी का सुकून औरत से है। इरशाद बारी ताला है वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू। ये सूरह रूम की आयत है। अल्लाह की निशानियों में तो है कि उसने तुम्हारे लिए जोड़े बनाए ताकि तुम उनके पास सुकून पाओ, यानी तुम्हारा सुकून औरत है। बच्चा बाप का होता है मगर उसकी पैदाइश औरत से होती है और उसकी परवरिश औरत की गोद में होती है। उसकी रज़ात में माँ से होती है और जब वो जवान होता है और उसकी शादी होती है तो उसकी सारी ज़िंदगी उसकी बीवी के साथ रहती और होती है। इसी में उसका सुकून है। किसी भी मर्द का बचपन, उसकी जवानी, उसका बुढ़ापा सब औरत की रिसाफत के साथ होता है। बीवी जिस कदर अच्छी और पाकीज़ा होगी, शौहर की ज़िंदगी भी पाकीज़ा और साफ सुथरी होगी, घर का माहौल भी पाकीज़ा, बुढ़ापा भी पुरसुकून होगा। मर्द और औरत दोनों इंसान में मर्द और औरत दोनों इंसान हैं। इंसान उनसे है जिसके माने मोहब्बत के हैं। मर्द और औरत दोनों में जिस कदर मोहब्बत होगी वो बेहतर इंसान रहेंगे। आपस में उनकी मोहब्बत जिस कदर कम होगी वो इंसानियत से खाली होते जाएंगे। खालिक़ कायनात का इरशाद है जाल बैनकुम मवद्दतun व रहमा। यह सूरह रूम की आयत है। उसने तुम्हारे दरमियान यानी मर्द और औरत के दरमियान मवद्दत व रहमत को रखा। मवद्दत का मफ़हूम मोहब्बत से ज़्यादा अजीम है। मोहब्बत में जब कशिश ज़्यादा होती है तो वो मवद्दत कहलाती है। इस्लाम ने शौहर और बीवी के बारे में फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। यह सूरह बकरा की आयत है। आपस में तुम दोनों एक दूसरे का लिबास है, लिहाजा आपस में लिबास की तरह रहो, मिलकर रहो, साफ सुथरे रहो, एक दूसरे के लिए जीनत बन के रहो, एक दूसरे के ऐसी सतत कोशिश करो। हाजिर मोहतरम, इससे आपको अंदाज़ा हो रहा है औरत का किरदार इस्लामी माशरे में बहुत अहम होता है। अब हम इस मुख्तसर वक्त में इस्लामी माशरे में औरत के किरदार के चंद नमूने पेश करते हैं। आज से तकरीबन 1450 साल पहले की बात है। हर तरफ कुफ्र व शिर्क और बदअखलाक़ी का दौरा था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने बयान हक़ देकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। आपने ऐलान नबुव्वत फरमाया तो सबसे पहले ईमान लाने वाली एक औरत सय्यदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा है। जब मुखालिफत की आंधियाँ चली, खतरात की मौजें बुलंद हुई, तो सबसे पहले आपको तसल्ली देने वाली सय्यदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा है। और वो बाहिम्मत और अज़्म व हौसले की खातून थी। सबसे पहले तबलीग इस्लाम के लिए कमर बस्ता होने वाली हज़रत खदीजा है। सबसे पहले इस्लाम का पैगाम लेकर तबलीग इस्लाम के लिए
हज़रत वफ़ा तक जाने वाली हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा है। दीन इस्लाम के लिए सबसे पहले अपना सारा असासा और सारी दौलत खर्च करने वाली हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा है। सबसे पहले राह खुदा में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिर अपनी जान कुर्बान करने वाली बीबी सुमैया शहीद इस्लाम है। सय्यदुना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को ईमान की दौलत से सरफराज करने वाली उनकी हमशीरा बीबी फातिमा बिन्त खत्ताब है। हातिम ताई के भाई को और पूरे कबीले तय को इस्लाम की दौलत से मालामाल करने वाली उनकी बेटी है। अरब के पूरे के कबीले को मुसलमान बनाने वाली आज़म मौके का पहाड़ हिकमत व दानाई से भरपूर एक बूढ़ी औरत है। आलम अरब में नफरत व लड़ाइयों को मिटाकर इस्लाम से खरीद करने वाली और मोहब्बत का पैगाम देने वाली अज़वाज मुतहहरात और उम्महातुल मोमिनीन है। जंग अहद में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए कुफार कुरैश के मुकाबले में सीने सिपर होने वाली उम्मे उमारा अंसारी के खातून है। इसी जंग अहद में अपने वालिद, अपने शोहर और अपने भाई की शहादत को सुनने के बावजूद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात की खबर सुनकर आका आपकी हयात है तो हर मुसीबत हेज है का ऐलान करने वाली अंसार की एक खातून है। जंग खंदक में अहले मदीने की तमाम ख़वातीन की हिफाजत के लिए ख़वातीन के डेरे में दिन रात पहरा देने वाली हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाहिम्मत होती है। इस्लामी माशरे के लिए तमाम अहले मदीना ख़वातीन की तरफ से नमूना बनकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नुमाइंदगी करने वाले खतीबतुन निसा खातून हज़रत अस्मा है। रोज़ अव्वल से तबलीग दीन में और इस्लामी माशरे और अल्लाह ताला के रास्ते में हर कदम पर कुर्बानी देने वाली औरत है। औरत और उसकी अज़मत से मुताल्लिक़ किसी शायर ने क्या खूब कहा, वमत्तानीतु लिस्मि शम्सी आइबुन वमत्तानीतु लिस्मि शम्सी आइबुन वमत्तज़कीरु फ़ख्रुन लिल हिलाली। अरबी में सूरज के लिए लफ्ज़ शम्स मुअन्नस इस्तेमाल होता है। सूरज के नाम का मुअन्नस होना उसके लिए ऐब नहीं और चांद के लिए उसका मुहत्तर होना कोई फ़ख्र नहीं। इस मकाले के आखिर में मौजू के मुताल्लिक़ एक लतीफ़ बात अर्ज़ करके इसको हम ख़त्म करेंगे। अरबी में शम्स यानी सूरज मुअन्नस है और सितारों का झुमुट सुरैया मुअन्नस है, ज़मीन मुअन्नस है, आसमान मुअन्नस है, दुनिया मुअन्नस है, बरकत मुअन्नस है, सआदत मुअन्नस है और जन्नत में परहेज़गार रहेंगे वो जन्नत की मुअन्नस है। इस अजीब उन्वान की तंगी वक्त की वजह से भी इख्तितार यहीं पर ख़त्म किया जाता है। सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि खल्क़िही व आलिही व अस्हाबिही।